Hi, good morning, students. In my previous lecture on CPC, we were on the topic of revision. We had finished the entire first aspect of CPC, and we were on the last topics after appeal, which was reference, review, and revision. I had given details about review yesterday. पूरा क्वेश्चन आता है, मैंने कल क्वेश्चंस भी फ्रेम आपको करके दिए थे रिव्यू पे. And then we had gone on to discuss revision. I had given the first reading to section 115, which deals with revision. और revision पे बहुत सारे questions आते हैं. Revision is an extension of the appellate authority of the High Court. Do you agree with this statement? Give reasons for your answer. या फिर revision is an act of a High Court in the interest of justice. Elaborate. Thirdly, the power of the High Court in revision is a limited power. Do you agree with this statement? Give reasons for your answer. कल जब हमने पूरा ये सेक्शन 115 पढ़ा तो हमने देखा that the High Court may in any case का ramification, हम जब explanation में आए तो उसमें केस को एक्सपैंड किया गया और हमने देखा कि एक एक्सपेंसिव व्यू मिला हमें वर्ड केस का. नाउ यू नो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कल चीज हमने देखी थी, पहला पॉइंट ये कि रिवीजन की पावर जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट्स पे है. पहला, he had no jurisdiction, he exercised it. दूसरा, he had jurisdiction, he did not exercise it. और तीसरा, he exercised the jurisdiction with a material illegality और irregularity. ये तीन बेसिक पॉइंट्स थे. प्रोवाइजो में जब हम कल आए तो वहां पे ये आया कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पे हाई कोर्ट रिवीजन नहीं करेगा. द रीजन बीइंग कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स सेम कोर्ट ठीक कर सकता है. वी हैड गिवन अ फर्स्ट रीडिंग. कल का जो हमने फर्स्ट रीडिंग दिया था रिवीजन का, अगर हम उसका एक समरी लें सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स में, आई वुड लाइक टू समराइज सेक्शन 115 in the words of the Honorable Supreme Court. So, I would like to quote Johari Singh versus Sukhpal Singh. कभी भी रिवीजन का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोट करो, ये वाली जजमेंट से शुरू करना. Johari Singh versus Sukhpal Singh, 1989, Supreme Court. The revisional powers of the High Court under section 115 can be invoked in cases in which the following conditions are satisfied. First, the case must have been decided. Secondly, the court which decided the case must be a court subordinate to the High Court. Thirdly, the order should not be an appealable one. And fourthly, the subordinate court must have A. Exercised the jurisdiction not vested in it by law, or B. Failed to exercise the jurisdiction vested in it by law, or C. Acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity. The High Court has no power to interfere in revision under this section except in the cases mentioned above. ये एक समरी थी सेक्शन 115 की in the words of the Honorable Supreme Court. इनको हम अलग अलग लेते हैं. पहला लेते हैं the first revisional jurisdiction. क्या था वो? Exercised by court of jurisdiction which is not vested in it by law.
पहला क्या था, वो जुरिस्डिक्शन वो कर रहा है, अप्लाई कर रहा है जो उसको लॉ ने नहीं दिया हो। सो पहला पॉइंट ये आता है that whenever the lower court assumes a jurisdiction which it does not possess, it assumes such jurisdiction by misconstruing the statute. It misconstrues the statutory provisions, or it wrongly presumes the existence of this jurisdiction by law. In such cases, the High Court must rectify the error by exercising its revisional jurisdiction. इसीलिए अब जहां पे सपोज एक पेक्यूनरी उसका जुरिस्डिक्शन नहीं था और उसने उसको एक्सरसाइज कर दिया, या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं था, उसने उसको कर दिया, अब हाई कोर्ट उसको ठीक कर सकता है, रिवीजन में जाके ठीक कर सकता है। बट देन मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर ठीक नहीं कर सकता, वो फिर वॉइड डिक्री है, हम पहले पढ़ चुके। सेकंड, जहां पे उसकी एक्सरसाइज है, जुरिस्डिक्शन है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, सो सेकंड हेडिंग इज फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। सो वेयर a court has the jurisdiction given to it by law, but it declines to use, or it declines that jurisdiction, then High Court can set it right by revision. Sometimes the court, under misapprehension of law or an erroneous construction or misconstruction, fails to exercise jurisdiction. In such cases, the High Court can interfere in revision. These lines I am quoting from Supreme Court. Kasturi and Sons versus Salivateshwaram, Salvateshwaran, 1958 Supreme Court. Which can, ऐसे कौन से examples हो सकते हैं where it has jurisdiction and it still does not exercise it? For example, it refuses to accept a plaint. Another example is it refuses to execute a decree जब उसका jurisdiction है, या अगर उसको रिव्यू करना था वो नहीं करता है, वो सोचता jurisdiction नहीं है। ऐसे के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां उसका jurisdiction है पर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। अब हम आते हैं तीसरे वर्ड जो सबसे कंफ्यूजिंग है, जहां उसने jurisdiction इलीगली या मटेरियल इरेगुलरिटी से गया है, where it has exercised its jurisdiction illegally or under material irregularity. जहां पे अब क्वेश्चन ये उठता है, what is the meaning of the word illegally or material irregularity? ये दोनों टर्म्स हमारे सीपीसी में डिफाइंड नहीं है, these are not defined. So what will be the subject matter of this? Basically, these relate to defects of procedure. Mostly ये procedural मामले होते हैं। Material irregularity और illegality हम क्या कहेंगे? इस पे हमारे पास एक बहुत पुराना बट एक लैंडमार्क केस है। This case is Amir Hassan Khan versus Shiv Prakash Singh, 1855 प्रिवी काउंसिल। ये एक लैंडमार्क केस है, अमीर हसन खान वर्सेस शिव प्रकाश सिंह, 1855 प्रिवी काउंसिल, जहां ये क्वेश्चन आया कि हम किसको
इलीगैलिटी एंड मटेरियल इरेगुलरिटी हम किसको कहेंगे? इसके अंदर जो होल्ड किया गया वो आज भी वैलिड है, इसीलिए हमारा लैंडमार्क केस है 1855 का। तो प्लीज नेवर फॉरगेट अमीर हसन। ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, रिवीजन पढ़ा हुआ है आपने, आपने डिटेल बता दिया, दे आर वेरी हैप्पी, और सडनली एक जज साहब ने आपसे पूछ लिया कोई प्रिवी काउंसिल का लैंडमार्क केस है इस पे याद है आपको? आपने कह दिया सर अमीर हसन। इमेजिन आपका स्टॉक कितना हाई हो जाता है, ऐसे एक जवाब से आप जज बन जाते, बिकॉज सडनली दे नो कि इसको वो भी पता है, इसको लैंडमार्क केस भी पता है इसका जो 1855 का है। तो ऐसी चीजों से इंटरव्यू क्लिंच कर लेते हो, इसलिए मैं ऐसी चीजें जरूर एम्फेसिस दे के पढ़ाता हूं ताकि ये चीजें आपको याद रहे। तो अमीर हसन केस में द वर्ड illegality and material irregularity, basically it means errors of procedure. The whole errors of procedure illegally or material irregularity has to be seen only in context of jurisdiction. एक चीज हमें नहीं भूलनी कि सारा का सारा रिवीजन jurisdiction पे बेस्ड है। जो अगर हम बोलें कि की वर्ड क्या है, व्हाट इज द की वर्ड, इट इज jurisdiction। तो इलीगैलिटी ऑफ jurisdiction, मटेरियल इरेगुलरिटी ऑफ jurisdiction, ये ख्याल रखना है। ये नहीं कि कोई भी मटेरियल इरेगुलरिटी या कोई भी इलीगैलिटी, इट इज ओनली पर्टेनिंग टू, अब jurisdiction इसका बेस वर्ड है। तो अमीर हसन ने कहा कि इवन थर्ड क्लॉज हमें jurisdiction के एंगल से ही देखना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां हम बोलते हैं मटेरियल इरेगुलरिटी और इलीगली, इट मींस अ विलफुल डिसरिगार्ड और अ कॉन्शियस वायलेशन बाय अ जज ऑफ अ रूल ऑफ प्रोसीजर। ये मैंने कोट किया अमीर हसन से। विलफुल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के, इसको पता है तब भी वो गलत कर रहा है। सो विलफुल डिसरिगार्ड और कॉन्शियस वायलेशन बाय अ जज of a rule of law or procedure। अगर हम एग्जाम्पल्स लें जहां पे कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया विदाउट टेकिंग द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इनटू कंसिडरेशन, जहां पे एक डिसीजन जो है वो सरमाइजेस, कंजेक्चर्स पे बेस्ड है, एविडेंस पे बेस्ड नहीं है, इट इज नाउ इलीगैलिटी। उसके बाद the opportunity of being heard was not given to both the parties, material irregularity। frame of issues were wrongly made totally or not framed at all। the burden of proof गलत पार्टी पे लगा दिया। an act of the parliament को अल्ट्रा वायर्स बना दिया आपने। मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को इग्नोर कर दिया आपने। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एरर्स which are concerning the jurisdiction and make it illegal or material irregularity। in other words, वो चीजें जो कोर ऑफ द केस को टच करती हैं, जो उसके सोल को टच करती हैं, जो उसके इथॉस को टच करती हैं, वो मिस्टेक्स जो बिल्कुल अंदर तक हिट करती हैं, वो हम इलीगल या मटेरियल इरेगुलरिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन में आती है। क्या चीज नहीं आएगी? क्या इलीगल या मटेरियल इरेगुलरिटी में क्या नहीं आएगा? आपका रॉन्ग डिसीजन। आपने जुरिस्डिक्शन सही लगाई, आपने सुनवाई ठीक की,
आपने सारे मटेरियल एविडेंसेस लिए, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ सही रखे, बाकी सब कुछ सही है, आपका एप्रिसिएशन जिसके बेस पे आप जजमेंट बना रहे हो और बाद में डिक्री दे रहे हो वो गलत है। आपने जो आपके पास एविडेंसेस थे, आपने एक एविडेंस को बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया और जो और इंपॉर्टेंट एविडेंसेस थे उनको आपने वेटेज नहीं दिया। आपने अपने एनालिसिस में गलत चीजों पे ज्यादा जोर दिया। दैट मीन्स एप्रिसिएशन। तो प्लीज रिमेंबर वन गोल्डन थिंग, a wrong appreciation of evidence in an otherwise properly exercised jurisdiction will not fall under illegality or material irregularity. Wrong decisions in a case, provided jurisdiction सही तरह से लागू की गई हो, is not a illegality or material irregularity. सो जहां मैंने कोई गलत डिसीजन दिया तो उसकी अपील है ना, फिर वी हैव द प्रोसेस ऑफ अपील, इट विल नॉट कम अंडर रिवीजन। तो मटेरियल इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी क्या चीज हो गई? जो लॉ कहता है कि करो और आपने उसको गलत किया, आप बेसिक लॉ ही गलत फॉलो कर रहे हो या कर ही नहीं रहे, या एक एक्ट जो है उसके खिलाफ जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू बिगिन है, राइट टू बिगिन इज विद द प्लेंटिफ एंड ओनली अंडर वन सर्कमस्टांस डिफेंडेंट करता है, हम देख चुके हैं। आपने सीधा बोला प्लेंटिफ आज नहीं है, राइट टू बिगिन, चलो जी डिफेंडेंट कर लो। अब ये एक मटेरियल इरेगुलरिटी है, या आपने कहीं सुनवाई का मौका नहीं दे रहे हो डिफेंडेंट को, मटेरियल इरेगुलरिटी है। वो कह रहा है कि सर ये चीज these are inadmissible evidences, आप सुनवाई नहीं कर रहे। आपने कहा जज मैं हूं कि तुम नहीं सुनवाई करता। अब ये मटेरियल इरेगुलरिटीज है। सो जहां लॉ को ही फ्लाउट कर रहे हो आप, वहां जुरिस्डिक्शन का मामला उठता है। जहां जुरिस्डिक्शन आप सही फॉलो कर रहे हो पर आपका डिसीजन गलत है। डिसीजन गलत क्यों है? आपने अपनी एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस गलत तरीके से किया। तो where you appreciate the evidence in a faulty way, that is not illegality or material irregularity. I hope everybody is clear. ये बारीकियां हैं जो हमें रिवीजन में समझनी है, क्योंकि रिवीजन पे मुझे लगता है 15-20 नंबर का क्वेश्चन आएगा और अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो ये चीज आप कैसे लिखोगे? तो इसके अंदर I'll quote जो मैंने अभी सारा बताया है। I'm going to quote again Amir Hassan versus Shivbak Singh, 1884, कई जगह इसमें 1885 भी लिखा हुआ है। नाउ सॉरी 1884, वो 1855 नहीं है, आई एम सॉरी, इट इज मिसप्रिंट है, वो 1885 है। नाउ अमीर हसन वर्सेस शिवबक सिंह को मैं कोट करता हूं इन्हीं चीजों में। प्लीज राइट डाउन दीज लाइंस, क्योंकि यही लाइंस भी लिखनी है। आई होप आप सब समझ गए हो कि अगर मैंने अपना एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ठीक ठाक किया है पर मेरा डिसीजन गलत है तो वो फिर इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी में नहीं आता। सो इसके अंदर आई एम कोटिंग अमीर हसन का केस मैं कोट कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैं आपको सारी डिक्टेट करा रहा हूं। मेरा दिस बॉय कीप्स माय माइंड एजाइल बाय गिविंग मी अ रेगुलर, मेरा सोर्स रखता है वो ब्लैक कॉफी का, तो मैं एक्टिव रहता हूँ, तो मेरा दिमाग एक्टिव रहता है। ओके, सो लेट्स क्विकली राइट डाउन अमीर हसन ने क्या एग्जैक्ट लाइंस उसके, ये यही कोट करना। प्लीज राइट डाउन, where a court has jurisdiction to decide the question before it, and in fact it decides the question, it cannot be regarded as acting illegally or with material irregularity in the exercise of jurisdiction merely because its decision is erroneous. इसको अंडरलाइन कर लो, मैं रिपीट कर रहा हूं,
where a court has jurisdiction to decide the question before it, and in fact decides the question, it cannot be regarded as acting illegally or with material irregularity in the exercise of its jurisdiction merely because its decision is erroneous. The mere fact that the decision of the court is wrong affords no ground for the interference of the High Court under this section 115. The question is, did the judges of the lower court exercise their jurisdiction? Whether they decided it rightly or wrongly, but they had exercised the jurisdiction. They did not exercise their jurisdiction illegally or with material irregularity. I hope I'm clear on this. Again, I have another Privy Council judgment. Venkat Giri versus Hindu Religious Endowments Board. Venkat Giri versus Hindu Religious Endowments Board, 1949 Privy Council. Section 115 applies only to cases in which no appeal lies. The manifest intention is that the order of the trial court, right or wrong, shall be final. It's only when the trial court has erred on jurisdictional aspect that the case falls under this section. I hope I'm clear on this very important aspect. So if I was to sum up, I would like to sum up in the words of the Honorable Supreme Court. Keshav Dev, Keshav Dev, Keshav, Keshav Dev, DOE Dev versus Radha Kishan, 1963 Supreme Court. Summing up, firstly, the court which has indisputable jurisdiction, I'm summing up this जो अभी तक हमने पढ़ा है. The court which has indisputable jurisdiction to hear a cause has jurisdiction to come to a decision, wrong as well as right, and the decision is not open to revision. पहला summary का point. दूसरा summary का point, where the question is one on the decision of which the jurisdiction of the court depends. The court cannot, by an erroneous finding, confer on itself a jurisdiction which it does not possess. And here, the order is liable to be revised by the High Court under this section. So I hope now सब इसके ऊपर बिल्कुल clear हो गए हैं कि मटीरियल इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी सिर्फ जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट पे है, नॉट ऑन द एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस. ओके, अब एक पॉइंट और आता है. अगर हम सेक्शन 115 में देखें, पहला सब सेक्शन देखें, एंड इन विच नो अपील लाइज, in which no appeal lies thereto. Now, अपील दो तरह की है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली. डायरेक्टली सपोज मैं सबऑर्डिनेट कोर्ट हूं, मेरी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ने अपील सुनी, उसमें
पॉइंट ऑफ लॉ आ गया, क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, और अब मैं सेकंड अपील में जा रहा हूं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी मानता है कि हां ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है और हम इसको अपील को एक्सेप्ट करते हैं। हम देख चुके हैं सेकंड अपील में हाई कोर्ट विल फॉर्मुलेट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, द क्वेश्चन ऑफ लॉ सेकंड अपील में। वो कहता है, अब यहां लिखा है इन विच नो अपील लाइज। तो क्या हम सिर्फ डायरेक्ट अपील की बात कर रहे हैं? सपोज मैं आज छोटा कोर्ट हूं, जैसे आप कल जज बनोगे तो आपका छोटा कोर्ट है, आपकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो अपील है वो अब इनडायरेक्ट अपील हो गई, वो सेकंड अपील है। तो जहां सेकंड अपील लाई करती है, क्या उसके ऊपर अप्लाई करेगा? तो हम यहां कौन से अपील की बात कर रहे हैं? हम यहां पे कौन से अपील की बात कर रहे हैं? वेयर नो अपील लाइज, डज इट मीन वेयर नो डायरेक्ट अपील लाइज, और डज इट ऑल्सो इंक्लूड वेयर नो इनडायरेक्ट और सेकंड अपील लाइज? क्या हम सिर्फ फर्स्ट अपील की बात कर रहे हैं कि सेकंड अपील की भी कर रहे हैं? इसके ऊपर देयर वाज डाइकोटमी ऑफ ओपिनियन। कुछ हाई कोर्ट्स कहते थे हां, कुछ कहते थे ना। However, this matter was then sorted out by the Honorable Supreme Court again in another landmark case, Khanna SS Khanna versus F.J. Dhillon. S.S. Khanna versus F.J. Dhillon. This is a landmark case of 1964 Supreme Court. This controversy was put at rest by S.S. Khanna versus F.J. Dhillon, in which it was very clearly held that appeal here means direct, immediate, indirect, all types of appeal. तो यानी कि अगर सेकंड अपील भी है तो भी ये रिवीजन बार्ड है। So here the word in which no appeal lies does not only mean direct appeal to the first court but also includes a second appeal in the high court. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अपील कोई भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर की फॉर एग्जांपल कोई अभी आज अपील हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दी, उन्होंने अपील आज चलो उसको डिसाइड कर दिया, अब मैं क्या ये बोलूं कि अब और आगे और अब रिवीजन में जाएंगे? नहीं, अभी सेकंड अपील है, इसीलिए क्योंकि सेकंड अपील है तो इसीलिए हम इसको रिवीजन में नहीं लाएंगे। तो ये चीज खास ख्याल रखना है, इन विच नो अपील लाइज हैज बोथ द कॉनोटेशंस, डायरेक्ट अपील टू द फर्स्ट एपेलेट कोर्ट, ऑल्सो द सेकेंड अपील अगर लाई करती है टू द सेकेंड एपेलेट कोर्ट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। अब जो क्वेश्चन उठता है, कैन एन एरर ऑफ फैक्ट और ऑफ लॉ be interfered in revision? Errors of law or fact which are not touching jurisdiction cannot be the subject matter of a revision. एक गोल्डन वर्ड हमें याद रखना है कि अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है तो कोई एरर नहीं ला सकते। कोई एरर ऑफ फैक्ट हो गया था, अपील में जाओ, फिर रिवीजन में नहीं। रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट है। हां, अगर कोई एरर ऑफ लॉ या फैक्ट जुरिस्डिक्शन से जुड़ गया तब वो रिवीजन में आ सकता है, तब हम उसको मटेरियल इरेगुलरिटी में ला सकते हैं। बट अगर एक प्लेन एंड सिंपल एरर ऑफ फैक्ट है या प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, एरर ऑफ लॉ है, जो जुरिस्डिक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो आप रिवीजन में नहीं लाओगे। दिस मैटर came up before the Supreme Court in the same important judgment of S.S. Khanna versus F.J. Dhillon, 1964 Supreme Court. And a mere error of fact or of law cannot be interfered with in revision. Any decision of a subordinate court on all questions of fact and law not touching the jurisdiction is final and not open to challenge in revision.
इसके ऊपर एक और जजमेंट भी बाद में आया 1970 में, MKP चेटियार, MKP चेटियार, CHETTIAR वर्सेस NP पिल्ले, AP पिल्ले, MKP चेटियार, CHETTIAR वर्सेस AP पिल्ले, PILLAI 1970 सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब ये हो गया, और ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे दिल्ली में हो रहा है या हरियाणा में ये ट्रेंड शुरू हो गया, they'll put up propositions, ऐसे ऐसे कोर्ट ने डिसाइड किया, एक सिंपल एरर ऑफ फैक्ट है, क्या आप इसमें आप करोगे? कैन द हाई कोर्ट टेक इट अप फॉर रिवीजन? नो। बट जहां जुरिसडिक्शन का मामला होगा, जुरिसडिक्शन का मामला कैसे आ गया? रेस जुडिकाटा जुरिसडिक्शन का मामला, रेस सब जुडिस जुरिसडिक्शन का मामला है, वहां पे अब अगर कोई एरर होता है वो अब रिवीजन में आ सकता है। इनफैक्ट मेरे पास इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी है, पांडुरंग छांगले, पांडुरंग PANDURANG छांगले CHANGLE वर्सेस मारुति जाधव, मारुति MARUTI जाधव JADHAV 1966 सुप्रीम कोर्ट। It was held, pleas of limitation or pleas of res judicata or res sub judice have the effect of ousting a jurisdiction, and erroneous decision on these issues would be a subject matter of revision by the high court। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमने सपोज लिमिटेशन में कोई गलत डिसीजन दे दिया, उससे क्या होगा? जुरिसडिक्शन बंद हो गया, आप जा ही नहीं सकते, बंद हो गए दरवाजे। रेस जुडिकाटा पे या रेस सब जुडिस पे मैंने कोई गलत डिसीजन दे दिया, रास्ते बंद हो गए आपके, जुरिसडिक्शन बंद हो गया। अब ये जुरिसडिक्शन से जुड़ गए हैं, अब इनमें कोई एरर है तो नाउ दे आर ऑफ कोर्स, एज आई सेड, नाउ दे आर रिवाइजेबल अंडर सेक्शन 115। कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं और इंटरव्यू में आ जाते हैं। एक रेस जुडिकाटा का केस है, कोर्ट ने गलत डिसीजन दे दिया, इज इट अपीलेबल, इज इट रिवाइजेबल, क्या होगा? तो ये रिवाइजेबल है। अब क्योंकि ये डिक्री है तो हम डिक्री को भी चैलेंज कर सकते हैं, डिक्रीज आर अपीलेबल ऑल्सो, बट दीज आर ऑल्सो, ये क्वेश्चन ऑन एरर ऑफ लॉ है, तो एरर ऑफ लॉज आर रिवाइजेबल। ये चीजें खास ख्याल रखनी है, कोई भी अगर मामला जुरिसडिक्शन से जुड़ जाता है तो वो मामले रिवाइजेबल होते हैं। नाउ रेस जुडिकाटा का जो ऑर्डर है पर से इज एन ऑर्डर, उसका रेस जुडिकाटा के अप्लाई कर रहा है, सो दैट इज द रीजन व्हाई ये सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई करना पड़ा कि ऐसे मामले जो जुरिसडिक्शन के रास्ते बंद कर देते हैं, लिमिटेशन का मामला आ गया, रेस जुडिकाटा का मामला आ गया, या बार्स टू सूट आ गया सेक्शन 12 में, वो सारे जो हैं रिवाइजेबल हैं। इसलिए मैंने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया, प्लीज डोंट फॉरगेट द लास्ट जजमेंट आई गेव यू, दैट वाज स्पेसिफिकली ऑन दीज मैटर्स, पांडुरंग छांगले वर्सेस मारुति जाधव। ओके, अब हम एक और टिकलिश इशू लेते हैं, वो ये है कि जो प्रोवाइजो है वो कहता है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं प्रोवाइजो, provided that the High Court shall not under this section vary or reverse any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding, except where the order, if it had been made in the favor of the party applying for revision, would have finally disposed of the suit or other proceedings। High Court इस सेक्शन में कोई भी ऑर्डर उल्टा नहीं करेगा या चेंज नहीं करेगा, बशर्ते कि वो ऑर्डर फाइनली डिस्पोज ऑफ ना कर रहा हो मैटर। यानी कि ओनली अगर वो फाइनली डिस्पोज ऑफ कर रहा हो
तब फिर हाई कोर्ट उसको टच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्वेश्चन ये उठा कि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं हमारे पास जिनका असर, जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स है, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो बहुत बड़ा असर डालते हैं हमारे केस पे। अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो हम ऑर्डर्स को दो मोटे मोटे हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो ऑर्डर्स जो अपीलेबल हैं, ऑल दोज ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल अरेस्ट का हमने देखे हैं सब, ऑर्डर 43 यही है सारा। तो कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं, हम ऑर्डर्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक ऑर्डर्स जो अपीलेबल हैं ऑर्डर 43 में, देयर इज अ क्लियर बार, जो अपीलेबल है वो रिवीजन में नहीं आ सकता, तो उन पे तो बार है। तो एनी मैटर विच फॉल्स अंडर ऑर्डर 43 इज नॉट रिवाइजेबल। अब दूसरा मैटर उठा, व्हाट अबाउट दोज मैटर्स विच डू नॉट फॉल अंडर अपील, वो ऑर्डर्स जिनकी अपील नहीं है। अब जिनकी अपील नहीं है वो क्या अब रिवीजन में आ सकते हैं? यहां पे हाई कोर्ट कहता है विच वुड हैव फाइनली डिस्पोज ऑफ, बट जहां हम पहली लाइन देखते हैं, द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर रिकॉर्ड इन एनी केस। एनी केस अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया। एनी केस नाउ मीन्स बेसिकली कोई भी मसला, कोई भी मामला। अगर हम ब्रॉड व्यू लें इस वर्ड की एनी केस, तो फिर कुछ भी आ सकता है। इसलिए यह डिसाइड करना था कि एनी केस कुछ भी आएगा, कुछ भी का मतलब सारे ऑर्डर आ गए। तो क्या कोई भी ऑर्डर्स जो हैं जो अपीलेबल नहीं है, क्या वो रिवाइजेबल हो सकते हैं? वो तब हो सकते हैं अगर हम ये मान लें कि एनी केस का मतलब है कुछ भी, पूरी प्रोसीडिंग में कुछ भी जो आ रहा है। तो हाई कोर्ट क्या कुछ भी मंगा सकता है रिवाइज करने के लिए? क्या इसमें ऑर्डर्स भी आते हैं? तो इसके ऊपर इसके बहुत सारे जजमेंट्स थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थे, बट अगेन द डिसाइडिंग matter was again decided forever by, as I quoted, the another landmark case of SS Khanna versus Dhillon. इसके अंदर please write down, quickly write down, please write down. The proviso deals with interlocutory orders which are subject to revision under this section. I'm quoting all this from Khanna versus Dhillon. To give the High Court jurisdiction to revise an interlocutory order, it is necessary that it must fall under the phrase any case. It must be a case decided by the subordinate court within the meaning of this section. For the purpose of this section, interlocutory orders fall under two classes. Namely, first, those from which an appeal lies under section 104, and order 43. These are orders made by the court of first instance. ट्रायल कोर्ट ही डालता है इनको। तो पहले इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स कौन से हो गए?
जो हमारे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं सारे इंटरलॉक्यूटरी हैं, वो सारे ऑलमोस्ट अपीलेबल हैं, ऑर्डर 43 में हम देख चुके हैं। बी, सेकंड कैटेगरी, those from which no appeal lies. Which no appeal lies, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो 104 या ऑर्डर 43 में नहीं आ रहे। दूसरा, जिनका फर्स्ट अपील में तो ऑर्डर पास हो गया, पर अब क्योंकि बार है कि ऑर्डर के और सेकंड अपील नहीं होती, तो इसलिए सेकंड अपील नहीं है। मुझे मालूम है ये बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स बोल रहा हूं मैं आज, बहुत ध्यान से प्लीज सुनना और रिवाइंड कर करके सुनना आज मेरा लेक्चर। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के ऊपर प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो डील्स विद ओनली इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, बट द होल प्रोवाइजो हैज टू बी रेड इन कंटेक्स्ट ऑफ द होल सेक्शन। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई थी? हाई कोर्ट मे कॉल फॉर रिकॉर्ड इन एनी केस डिसाइडेड बाय अ लोअर कोर्ट। अब केस का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऑर्डर, कोई भी मामला जिसमें अपील नहीं है, जहां अपील ना हो, सिर्फ वो रिवीजन में ला सकते हैं। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, अपीलेबल, नॉन अपीलेबल। हम पढ़ चुके हैं। अपीलेबल ऑर्डर्स कहां थे? या तो 104 में, रेड विद ऑर्डर 43, वो तो क्लियर बार है, वो सारे मामले रिवीजन में नहीं जा सकते। क्यों? 115 बोल रहा है, प्रोवाइडेड दे आर नॉट अपीलेबल। अब प्रॉब्लम आती है जो नॉन अपीलेबल ऑर्डर है। नॉन अपीलेबल किस तरह के होंगे? पहला, ना 104 में अपील है उसकी, ना ऑर्डर 43 की है, और उसमें ऑर्डर 43 क्लियरली कहता है जो ऑर्डर्स 104 और 43, ऑर्डर 43 क्या कहते हैं? जो ऑर्डर्स यहां नहीं आ रहे हैं वो अपीलेबल नहीं है। अब जो अपीलेबल नहीं है, क्या वो रिवीजन में आते हैं? क्योंकि अपील नहीं है, इंटरलॉक्यूटरी है। एक और कैटेगरी हो सकती है कि मैं अपील में गया, ये जो ऑर्डर्स हैं मेरे पास 104 143 के, मैं अपील में गया, उसके अंदर कोई ऑर्डर पास कर दिया अपीलेट कोर्ट ने। अब मैं सेकंड अपील में जाना चाहता हूं, पर सेकंड अपील बार्ड है। हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर्स की सेकंड अपील नहीं होती है। अब कायदे से फिर नॉन अपीलेबल हो गया। सो ऑर्डर ऑफ एन अपीलेट कोर्ट अगेन इज नॉन अपीलेबल। अब जहां अपीलेट कोर्ट ने सपोज ऑर्डर जो है अपील में गलत दे दिया, तो अब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन ये उठा कि ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स जो फर्स्ट इंस्टेंस में ही अपीलेबल नहीं है, जो 43 में, ऑर्डर 43 में नहीं आ रहे हैं, या फिर अगर अपीलेबल थे, अपील कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया, पर अब वो सेकंड अपील नहीं है क्योंकि क्लियर बार है ऑर्डर्स पे सेकंड अपील नहीं होगी। क्या ये दोनों रिवीजन में जा सकते हैं? अब यहां पे खन्ना वर्सेस ढिल्लो ने क्लियर किया कि हां जी, आप जा सकते हैं। So that is why Khanna versus Dhillon is a very important judgment, landmark judgment. एक अमीर हसन, इरेगुलरिटी क्या और इलीगैलिटी क्या होती है, और खन्ना वर्सेस ढिल्लों, ये दोनों बहुत बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स हैं रिवीजन पे। इसमें क्लियर किया गया कि नाउ द नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स ऑफ बोथ द कैटेगरीज, ए जहां शुरू में ही अपीलेबल नहीं थे, बी जहां अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर आ गया और अब आगे अपील नहीं है उसकी, बाय वर्च्यू ऑफ अ बार ऑन second appeal on orders, now they are revisable. Khanna versus Dhillon. So I hope I'm clear on this. I would just quickly dictate. The word case is wide enough to include an interlocutory order. जो नीचे कहते हैं ना प्रोवाइजो,
उसके लिए अब एनी केस के अंदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी आ गए. So the word case is wide enough to include any interlocutory order, and that the words record of any case includes anything, including all interlocutory orders. Hence, the High Court has the power to interfere in revision with orders passed at any stage of the suit, provided those orders have no appeal. The word case is wider than the word suit, and it is well settled now that interlocutory orders can be revised under this section. So प्रोवाइजो के ऊपर ये प्रोवाइजो वाले जजमेंट आ गया है खन्ना वर्सेस ढिल्लों. क्योंकि अगर हम एक सिंपल रीडिंग करें प्रोवाइजो की तो वो ये कहते हैं सिर्फ फाइनल ऑर्डर जो सिर्फ डील करते हैं वही सिर्फ रिवाइजेबल है. बट अब खन्ना ने और वर्सेस ढिल्लों ने क्लियर कर दिया देयर वर मेनी अदर जजमेंट्स. तो हाई कोर्ट के सारे कम से कम 20 जजमेंट्स हैं, बट वो कॉन्फ्लिक्टिंग थे. उसको फिर टू सेटल द डस्ट खन्ना वर्सेस ढिल्लों ने ये चीज क्लियर की. तो सम अप, प्रोवाइजो कहता है कि सिर्फ जो फाइनली डिस्पोज ऑफ करता सूट को वही सिर्फ रिवाइजेबल है, वही ऑर्डर सिर्फ रिवाइजेबल है. बट शुरू का जो वर्ड है, द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर रिकॉर्ड इन एनी केस. क्या एनी केस इंक्लूड्स ऑल इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स? Various high courts had dichotomous decisions. The matter was finally decided by Khanna versus Dhillon, in which the Supreme Court said that the word in any case includes interlocutory orders also. Hence, interlocutory orders are also revisable. However, because of a clear bar in section 115, interlocutory orders which are appealable are not revisable. In other words, any order which falls under section 104 or order 43 is not revisable. However, all the orders which do not fall under these are revisable, and also orders of the appellate court on appeal against orders under 104 and 43 are also revisable because उनकी आगे अपील नहीं है. So I hope सब क्लियर हो गए. ये बहुत टेक्निकल पॉइंट्स थे, बहुत किताबों में नहीं लिखे हैं, बट देन वी हैड टू गो इनटू डिटेल्स. क्योंकि अगर ये डिटेल्स आप लिखाओ तो 20 में से 18 नंबर दे देगा एग्जामिनर आपको. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस. ओके, so now that we are clear on all these aspects, we are through with revision. We have completed the entire topic of revision. We are through with part 1 of CPC. Part 1 of CPC dealt with, अगर हम देखें क्विक 1 मिनट में सारी रिवाइज करें CPC. पहले 25 सेक्शन थे, मैं कहां जाऊं? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सेक्शन 1, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन सेक्शन 6, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन सेक्शन 9. सेक्शन 9 यूज द टर्म अनलेस एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड बाय लॉ. एक्सप्रेस बार आ गए सेक्शन 4, 5, 7, 8 में आ गया स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के बार्स. बार्स अगेंस्ट द सूट, सेम सूट आ गया सेक्शन 10 सबजुडिस, रेस सबजुडिस, रेस जुडिकाटा आ गया 11, बार्स बाय द CPC आ गया 12. 13-14 में आगे फॉरेन जजमेंट्स, 15 से 21 तक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड पर्सन का जुरिसडिक्शन. कहां जाऊं? अगर कोई जुरिसडिक्शन की प्रॉब्लम है,
जहां पे चॉइस है प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट एग्रीव्ड है, तो वो ऑब्जेक्शन डालेगा 21 से लेकर 25 तक। 26 से शुरू हो गई सीपीसी। सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय अ प्लेंट, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर 4, क्योंकि वर्ड प्लेंट था। प्लेंट में पार्टीज कौन होंगी? ऑर्डर 1। प्लेंट में कॉजेज ऑफ एक्शन कैसे जोड़े जाएंगे? ऑर्डर 2। प्रिंसिपल्स क्या होंगे? ऑर्डर 6। प्लेंट के सारे एस्पेक्ट्स क्या होंगे? रिटर्न वगैरह वगैरह, ऑर्डर 7। प्लेंट डालने के बाद आपने डिफेंडेंट को बुलाया, ऑर्डर 5। कौन कौन अपीयर हो सकते हैं पार्टीज में? ऑर्डर 3। डिफेंडेंट आ गया, उसने अपना WS डाला, ऑर्डर 8। कोर्ट में आ गई दोनों पार्टीज या नहीं आई? ऑर्डर 9। कोर्ट पिक्चर में आ गया, ऑर्डर 10, फर्स्ट हेयरिंग। माइंड क्लियर नहीं है पार्टीज का? इंटेरोगेटरीज, डिस्कवरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर 11। सारे मामला डॉक्यूमेंट्स का, रिटर्न वगैरह वगैरह कैसे हम डालेंगे, इंडोर्समेंट्स वगैरह, ऑर्डर 13। मुद्दे हमने बनाने, कुछ चीजें हम एडमिट कराएंगे बाय नोटिस, ऑर्डर 12। सब कुछ क्लियर हो गया, ऑर्डर 14, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गए। इश्यूज फ्रेम होने के बाद पहली हियरिंग में अगर कोई डिस्पोजल हो रहा है, ऑर्डर 15। 16 में हमने विटनेसेस को बुलाया। 17 में हमने अगर कोई एडजर्नमेंट्स थी वो दी। 18 में ट्रायल किया। ट्रायल में अगर आप कोई एविडेंसेस एफिडेविट से लेने चाहते हो, ऑर्डर 19। 20 में जजमेंट आ गया, जजमेंट और डिक्री आ गई। कोई मर गई पार्टी, अबेटमेंट हो गया, ऑर्डर 22। विड्रॉल हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया, ऑर्डर 23। डिफेंडेंट पैसा डालने को तैयार है, ऑर्डर 24। प्लेंटिफ से कॉस्ट और सिक्योरिटी रखवा लेते हैं, ऑर्डर 25। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स है, सेक्शन 75, 76, 77 कमीशंस, ऑर्डर 26। 27 से 37 ऑर्डर्स, स्पेशल सूट्स, इंटरप्लीडर सूट्स, समरी सूट्स, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के द्वारा, फैमिली, रूलर्स, फॉरेन एलियंस वगैरह वगैरह वगैरह, सब स्पेशल सूट्स। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स हैं सारे, सेक्शन 94 में थे, वो सब आ गए, ऑर्डर 38, 39, 40। 41 से अपील शुरू हो गई। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। अपील, रेफरेंस, रिवीजन, रिव्यू, रिवीजन, सेक्शन 115। मिसलेनियस आ गया, 48। चार्टर्ड हाई कोर्ट्स कौन से थे? 49। 50, 51 स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स, 51 ऑर्डर्स, खत्म। पार्ट 1 ऑफ सीपीसी फिनिशेस, पार्ट 2 स्टार्ट्स। एक डिक्री एक कागज का टुकड़ा है, क्या करेंगे उसकी? अगर उसको हम एग्जीक्यूट ना कर पाए, कोर्ट का ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, अगर उस फ्रूट्स ऑफ द डिक्री को आप मेरे को ना दे पाओ। कोई भी क्रिमिनल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम हो या सिविल जस्टिस सिस्टम हो, उसको अंजाम तक लाना जरूरी है। अंजाम क्या है? एग्जीक्यूशन। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है तो पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, इंप्रिजनमेंट, फाइन। सिविल लॉ है तो एग्जीक्यूशन की बहुत सारी चीजें हैं। मुझे मेरे डिक्री के फ्रूट्स दे दो। और डिक्री के फ्रूट्स कैसे दोगे? आप
चाहे उसकी प्रॉपर्टी अटैच करो, सेल करो, अरेस्ट करो जजमेंट डेटर को, या जो जजमेंट डेटर को पैसा देना चाहता है उसको पकड़ के ले आओ, कुछ भी करो. You give me my fruits of my decree. Order 21, 106 rules and various sections. All this will now come under execution. Execution is a final product of a justice system. Without execution, a justice system is meaningless. Without execution, an order of a court is a mere paper tiger. For this reason, the procedural codes must give in detail the entire process of execution. CPC is no exception to this rule. In fact, CPC devotes a huge chunk of its code to execution. The head order on this is Order 21, having 106 rules, and there are various sections. I guess आज का lecture heavy भी था. I will not start execution right now. वैसे भी 2-3 मिनट बचे. I'll take up execution from tomorrow onwards. Thank you. God bless.